Go. Hi everyone, good morning. So we are left with FEMA. So we start with FEMA today. Come to FEMA. So in your respective books, kindly come into FEMA chapter. आ जाओ. आयो पढ़ाई हो रही होगी किंजल. How study is going on? Good, great. So start revising also because अब दिल्ली दूर नहीं, because membership number will come from Delhi. So the weightage of this chapter is basically 4 marks to 6 marks. The way we have studied the other topics, you will study in the same order. FEMA एकदम last में करना, एकदम last में. If you see in the market, there is a lot of panic because of this chapter. So FEMA. अरे FEMA comes only for 4 marks if it comes. Generally तो it doesn't come. But if it comes only for 4 marks towards the end. Question number 5 या 6 में आपको FEMA मिलेगा. 3 parts were new. That's ODI, that's overseas direct investments, external commercial borrowings and ECB हो गया, ODI हो गया और import of goods. तो ये 3 चीज ऐड हुए थे. That's for I think May 20 और November 20 attempt. But May 20 एग्जाम नहीं हुआ तो फिर November 20 से कैरी फॉरवर्ड होने लगा. इंस्टीट्यूट वहां से भी पूछ सकता है जो या फिर जो ओल्ड का पार्ट है वो भी पूछ सकता है. डरने का नहीं. यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स. एब्सोल्युटली इट इज ओके. यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स एंड क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन बुक्स. बस उतना कर लो, बहुत है. If you try to do it from the module or from any of the book, it's a very big chapter. So make sure you do the content from here and the question from question book. बाकी तो फिर क्या है, फिर किस्मत है. Cool है. Hi Charu, hi Arun, good morning. Hi Samruddhi, good morning. How are you? How's life? Now. Yeah, long time no see. अब देखो. Now for example, they will, which is the country you want to visit, which is your favorite country that you want to go that particular country? New Zealand. Okay, so they will has a plan. Okay, she wishes to go to New Zealand. Ab obviously when she goes to another country, she will require money. When she requires money in India, she stays in India. She has INR. But in New Zealand, INR will not work. So what she do? She goes to a authorized person. Who is this authorized person? Sir, banks हो गए, Thomas Cook हो गया, Western Union money transfer. So what does Deval does? So Deval collects her INR and give it to the authorized person. All these authorized persons are agents who have been given license, by RBI. So in this entire chapter, the apex body is basically RBI. Okay? So Deval will collect INR, will go to authorized person, and this authorized person will convert the currency into the New Zealand ka currency. Generally in India, we do not follow cross currency concept. We follow everything with USD. मतलब आप GBP भी नहीं बातें करोगे, आप यूरोज में बात नहीं करोगे. You will always speak in USD. So they will convert her currency into USD. Now she went there,
she spent the money, she came back to India. Certain USDs are still left with her. So in India, you are not allowed to keep any currency other than Indian currency. In India, you are not allowed to keep any currency other than Indian currency. हाँ, कुछ लिमिट दे रखा है, up to that limit you can keep, but over and above the limit you cannot keep. So what will they will do? So they will again go to authorized person, reconvert the USD into INR. So all these concepts are in this chapter. Okay, if you're an individual, if you're traveling abroad, now for what purpose you're traveling, वो भी दिया है. So you take Indian currency outside India. So how much currency you can take? If you're coming back to India, how much currency you can keep with yourself? All those concepts are given in this chapter. Okay? Now, Deval, she's an Indian. She's an Indian citizen. She's a resident in India. She wants to buy a property in Mumbai. Bolo, allowed or not allowed? Deval is an Indian citizen. She stays in India, Indian resident. She wants to buy a property in Mumbai. Bolo, allowed or not allowed? Sir, it is allowed because सब कुछ Indian है. But now what happens? Deval got shifted to Dubai. Deval started staying in Dubai. Now, as per the condition, we will study in this chapter. As per the condition, she is an Indian citizen, but she became a person resident. She became a person resident outside India. Person resident outside India. Kindly do not mix with the DT. DT में residential status different है. Here it is different. Here we are not talking about residential status. Here we are talking about person resident outside India. She is an Indian citizen, but she got settled in Dubai. Dubai के CH. ठीक है, एकदम full. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, everywhere. Now, she wants to buy property in Mumbai. Now she is a person resident now outside India. She wants to buy property in Dubai. She is a person resident outside India. Though she is an Indian citizen, but she is a person resident outside India. She can buy the property, but there are certain conditions. Which property she can buy? Understood? Because she is a person resident outside India. But there are certain conditions. Generally, it is not allowed, but after fulfilling certain condition, it is allowed. Okay. Now, for example, Mr. Jack Ma. Jack Ma, you know, he is not an Indian citizen. So, he is not an Indian citizen. He is also not a person resident in India. That means, for the purpose of FEMA, he is a person resident outside India. Are Alibaba ka owner. Now, he wants to buy property in Mumbai. Sir, generally not allowed, but allowed अगर कुछ condition आप meet कर देते हो तो. So here in this chapter we will not talk about who is a resident, who is an Indian citizen. So here will be only two concepts: pry, proy. क्या है? Pry, proy. Person resident in India, person resident outside India. So from individual's perspective, how much money you can take, how much money you can keep in India. Achha, which property you can buy. If you are a person resident outside India, which property you can buy in India. So everything would be covered here. When we talk about FCRA, take a new syllabus specifically, when you talk about FCRA, it's not on individuals. It's on social organizations, political parties, office bearers, and how much money they can receive, how much money they can spend. So that's from the perspective of organization. This chapter is from our perspective. Understood the background? Any doubt till now? Cool. Now there are certain concepts. Please keep a pencil or a pen with you. You just have to read. I'll tell you which one you have to mark. Sir, person as per FEMA. Don't mix it with DT. Don't mix it with IBC. Don't mix it with Companies Act. It's as per FEMA. So FEMA ka year hai FEMA, Foreign Exchange Management Act 1999. Now, when you talk about sections of this FEMA, few sections you have to remember. You will quote FEMA 1999. When you talk about rules. So हमेशा rules next year का होता है FEMA 2000. Rules would be in FEMA 2000. Clear? Person. So person means everyone. Individual, HUF, company, firm, AOP, BOI, AGP, agency, branch, office, owned or controlled by such person. So it means sub matlab sir, sub, everything. Sir,
individual, HUF, company, firm, AOP, BOI, AGP or agency branch office. Now please write here BUA, branch office agency. काम आएगा अभी. BUA, branch office agency. वो भी पर्सन है. ऑथराइज पर्सन, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, थॉमस कुक, बैंक्स. ठीक है, बैंक्स हो गया. ठीक है, that is called as authorized person or as person. It means an authorized dealer, money changer, offshore banking unit, offshore banking unit or any other person for the time being who is authorized to deal in forex or foreign security. So कोई भी आप एग्जाम्पल, कोई भी बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, थॉमस कुक हो गया, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, लॉट ऑफ एजेंट्स आर देयर. दैट्स कॉल्ड एज authorized person. Authorized person. एक होता है repatriate to outside India, repatriate in India. When you say repatriate in India, मतलब you were doing a business outside India or you were on employment outside India. You came back to India. So you have to bring the forex to India. Now, is it a good thing or a bad thing when you bring forex to India? Think. Is it a good thing or bad thing? So it's a very good thing. It's a very good thing. It's a very good thing, sir. Because foreign reserves India में आ रहे. So it says it means bringing into India realized forex and selling of such foreign exchange to an authorized person in India in exchange for rupees. जो हमने example दिया, they will went to New Zealand, spend some money, earn some money. She came back to India. She will collect that forex and give it to an authorized person in India in exchange for INR. Or holding the realized amount in an account with an authorized person in India to the extent notified by RBI. You can keep forex in India up to a certain limit. ठीक है. It also includes the use of realized amount for discharge of a debt or liability. कोई loan वोन भी repay करना हुआ हो गया आपको, that's also repatriated in India. If you must have heard these words, non-resident exchange account, NRE account, NRO account. सुना है सबको NRE, NRO accounts. So बैंक में होते सब, ये सब foreigners के होते, I mean Indian citizens staying abroad, उनके accounts इंडिया में होते हैं. So वो लोग उसको डॉलर में रख सकते हैं. In USD they can keep, but up to the limit of RBI. So that all those things are not in our syllabus, we just should understand the concept. Now, first answer, mark this as important. Pry. So your pry and proy, these are the two main important concepts. Pry and proy. Pry and proy. क्या कहता है? A person residing in India for more than 182. एक सेकेंड, more than 182 मतलब how many days हो गया? A person residing in India for more than 182 मतलब कितना days? Sir, minimum 183 days, not less than 183 days, at least 183 days. Correct? A person residing in India for minimum 183. Please write there 183. So for this year, if you want to check my FEMACA status, I am not talking about residential status already, I am talking about FEMACA status. So for this year, you have to check last year. So for example, the current year is going on as 21-22. For 21-22, for the purpose of FEMA, whether I am pry or proy, you have to see in the previous year how many days I have stayed in India. If in the previous year I have stayed, minimum 183 days, in India, then who am I? Who am I? Sir, for 21-22 you check previous year matlab sir 2021. So in 2021 if you have stayed for minimum 183 days, sir, then you become a person resident in India.
then you become a person resident in India. So please write minimum 183 there. कब चेक करना है? During the course of preceding financial year, in the previous year. In the previous year you check. But does not include. See, you need to break this definition and then understand. It says a person resident in India for minimum 183 days in the previous financial year, you are a pry. But does not include three people. A person who has gone outside India or who stays outside India. A person who has gone out of India or who has stayed outside India, or for what purpose of taking up employment outside India. Number 2, for carrying on outside India a business or vocation outside India. Sir, employment outside India, business or vocation outside India, or for any other purpose which would indicate his intention to stay outside India for an uncertain period. Intention to stay outside India for an uncertain period, as would indicate the intention to stay outside India for an uncertain period. Matlab, sir, it says a person residing in India for minimum 183 days in the previous financial year is a pry, but does not include number 1. Number 1 में क्या बोलते हैं? Person who has gone outside India or who stays outside. देखो, outside India जो अगर वो रहता है, that's logical. जैक मा, जॉर्ज बुश, बैरक ओबामा, बराबर, these people are staying outside India, so that person is never a person resident in India. That's never a person which is called as pry. तो उसको यूज करते हो लॉजिक. अंडरस्टैंड, अ पर्सन हु हैज गॉन आउटसाइड इंडिया फॉर employment outside India, business or vocation outside India, and stay which would indicate uncertain period, or for a period which would indicate his intention to stay outside India for an uncertain period. ये तीन लोग, these three people is not a pry. If these three people are not pry, then who are these three people, guys? If these three people are not pry, who are these three people, guys? बोलो. Sir, minimum 183 days is a pry, but it excludes three people. Who are those three people? Sir, employment outside India, business or vocation outside India, or uncertain period. तो सर ये तीन लोग कौन हो जाएंगे? ये बोल रहा है इट एक्सक्लूड्स, तो ये तीन लोग कौन हो जाएंगे? सर, दिस तीन पीपल वुड बी कॉल्ड एज प्रॉय. दिस थ्री पीपल वुड बी कॉल्ड एज प्रॉय. क्लियर? होल्ड ऑन. Number 2, a person who has come to India or stays in India. In either case, otherwise then. A person, this is gone or stay outside India. एक और माइनस होगा. The minus would be a person opposite who has come or stays in India. Understand this definition now. अभी तक is minimum 183 days, sir, you are pry. Number 1, you will exclude who has gone outside India or stays outside India for a purpose of employment, business, vocation, or uncertain period. Number B, a person who has come to in India or stay in India. In either case, this word is very important. Otherwise then, ABC, opposite pura, taking up employment in India, business or vocation in India, or such circumstance as would indicate his intention to stay in India for uncertain period. Exactly opposite. Employment in India, business or vocation in India, intention to stay in India for uncertain period. Employment, business or uncertain. Now my question is,
break the definition in number 2 in this part. Till where it is pry or till where it is proy or otherwise then ABC जो लिखा है, this ABC ये क्या है, ये pry है कि proy है? Use the logic what you have studied in the previous part, the first part, and explain me a person who has come to or stays in India in either case, otherwise then employment in India, business or vocation in India, intention to stay in India for uncertain period. मतलब क्या है? What is pry, what is proy here? Can someone explain? Great Asta, great Kinshal. Others? Arun, what is your view, Ayush? Devil, Padmaja? SR. A person who was staying abroad. So when we talk about this 21-22 ना, तो person तो उधर ही रह रहा था. So in the last year he was staying abroad only. Now he came to India in this year ना. So but for this year you check the previous year. You check the previous year ना. So sir, a person who has come to India or who is staying in India in either case, otherwise then, for taking up employment in India or business or vocation outside India or for any other purpose in such circumstances will indicate his intentions to stay in India for uncertain period. So यहाँ पर क्या हो जाएगा? Otherwise then, these three people will become pry. These three people will become pry. Clear? Any doubt? If you want to draw, please draw ऊपर. Please draw on the terrace. It's a small definition. And any doubt, guys? Nowadays, ICI is not asking on a 4-mark question this concepts. It may come as a 1-mark or a 2-mark question, but 4-mark is very difficult. खुले? Shall we proceed? Thanks. Now, understand BCD. It says any person or body corporate registered or incorporated in India. So person मतलब वो AGP आ गया, उसमें BOI आ गया, body corporate, you know it's company, everyone which are incorporated in India will always become pry. Correct? Don't mix with the DT, don't mix with your companies like foreign company, Indian company. नहीं, they are pry. FEMA में there are only two concepts, pry है कि proy है. Now, always remember picture में India is very important. It says any BUA, branch office agency in India, owned or controlled by foreign, owned or controlled by a pry. So that branch office agency also becomes person resident in India. Vice versa. A BUA outside India, किधर है? Branch office agency outside India है, पर control कौन कर रहा है? India का person. So this is opposite you have to play. BUA in India controlled by a pry.
still a pry. Bua outside India, controlled by pry, still it is a pry. Understood the definition guys? बहुत simple है. एक example ले लो तो और clear हो जाएगा. Now for example, a company in Dubai. A company in Dubai. Now we have in Chennai a BUA, a branch office agency. This Dubai ka company is either owning or controlling Chennai branch or Chennai office or Chennai agency. So my question is, for the purpose of FEMA, I'm not talking about Companies Act, not DT, FEMA में चेन्नई का जो बुआ है ब्रांच ऑफिस एजेंसी, what will it become for FEMA? Sir, it will be called as PRAE, person resident in India. ठीक है, clear? Because विदेश वाला is controlling, but office तो इंडिया में ना, इंडिया दिखा, इंडिया is like PRAE. Now we take the question further. What happened? This Chennai branch branch office agency is either owning or controlling a branch office agency in Singapore. Now for the purpose of FEMA, आराम से सुनना, for the purpose of FEMA, this branch office agency, office agency of Singapore is PRAE या PROI? बोलो. Is PRAE या PROI? Sir, this also PRAE. This also is PRAE. The Singapore branch is also person resident in India. Sir, why? अरे चेन्नई का ब्रांच, चेन्नई का ब्रांच है, is controlling और ओनिंग सिंगापुर ब्रांच, बराबर. अब सिंगापुर तो फॉरेन में है, बट चेन्नई ब्रांच itself is called as PRAE. So branch office agency outside India, owned or controlled by person resident in India. So that Singapore branch also becomes person resident in India. Now in our question book or whatever author you are following, you'll be given, I think maybe like 5 to 8 questions on this concept. I have analyzed everything. ICI ask anything, the answer is PRAE. This branch office controlling this branch office agency, PRAE. That branch controlling this branch, PRAE. कुछ भी पूछे ना, कुछ भी मतलब सारा आग बंद करके PRAE. In case if you have forgotten the concept on the exam day, it happens because people get panic attacks. So आग बंद गए PRAE. कुछ भी पूछ, it is PRAE. Answer would be right. So you talk about model illustrations, you talk about model के पीछे का question, you talk about author का book, you talk about our question book, you talk about anywhere, the entire conclusion is PRAE. Clear? So this we have done. PRAE we have done. Sir, what is a person resident outside India? What is a person resident outside India? It means a person who is not a resident in India. Very, very tough definition. 16 marks. Who's a PROI? Who is not a PROI? Who's a PRAE? Who is not a PROI? So PROI, you cry. PRAE याद रखो, PROI तो बहुत simple. Who's not a resident in India? Who's not a resident in India? ठीक है? Now, there's one concept here. Shelly. She's an air hostess. Wow. In Singapore Airlines. She's an air hostess in Singapore Airlines. So, you know, they have to stay in India because there's a layover. So the next flight, connecting flight, maybe like in the next day or maybe like after 2 days. So Shelly comes to India. 2 days के बाद उसका flight होता है. She went back to Singapore. She again came to India by a flight. ठीक है. Again 3 days के बाद उसका next flight था.
ऐसा करते करते कभी 2 days, कभी 3 days, कभी 1 day, ऐसा करते करते 183 days she was in India. 183 days she was in India. Is she a person resident in India? Bolo. Is she a person resident in India? Deval has given the answer. Others, Padmaja. Padmaja, good morning. Bolo. So चारू ने आंसर दिया है, पद्मजा ने आंसर दे दिया है. Deval has given the same answer what others have given. Ayush, what is your answer? Please read this answer. Parrot? Parrot? See, she is not staying out of her will, her wish. It's out of the compulsion of a job जो वो यहाँ पर रह रही है. उनकी जॉब यहाँ पर नहीं है. नहीं, जॉब तो अभी भी ब्रिटिश में है, ब्रिटिश एयरवेज. द सेम क्वेश्चन सिंगापुर एयरलाइंस वाला. द जॉब तो वही है, बट कैसा उनका जो जॉब का जो नेचर है वो 2 दिन इंडिया देन अब्रॉड, देन 2 दिन इंडिया देन अब्रॉड. So those persons, even if it exceeds more than 182, मतलब minimum 183 days, those person cannot be said to be a person resident in India. So if they cannot be said to be a person resident in India, मतलब they are person resident outside India. Clear? The same question is there in the question book. है. Any doubt guys now? Clear है? सबको एक question? अच्छा, on the terrace, write one point. Citizenship is irrelevant. Right there on the terrace. यहाँ पर terrace पे. Citizenship is irrelevant for the purpose of FEMA. Citizenship is irrelevant for the purpose of FEMA. सिटीजनशिप इज इरेलेवेंट फॉर द पर्पज ऑफ FEMA. तो ये MCQ में आ सकता है और मे बी लाइक 1 और 2 मार्क का आंसर, ध्यान रखना. नाउ सो इफ यू टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ दिस चैप्टर ना, मतलब सर कितना पढ़ना होता है हमको, देखो एक तो प्राय का आंसर, इसके क्वेश्चंस. नंबर 2 देयर आर ट्रांजैक्शंस. कौन सा ट्रांजैक्शंस सर? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड करंट account transaction. cat cut. Number 3 talks on export. Number 4 talks on import, overseas direct investments, and 6th is ECBs, external commercial borrowings. So this is basically the chapter का scope. अब ICI कोई भी point पे मतलब कुछ भी पूछ सकता है. Now these 3 things are new. These things are newly added. अब बहुत लंबा चीजें देखते अपन क्या करना है क्या नहीं करना है. अभी अपन वी आर डन विद दिस पार्ट. प्राय हो गया.
Now we are on the second part, that's transaction. क्या होते हैं? Capital account and current account. Now see, I will ask you question directly because you are champ and you know it. If I am going to US, I carry dollar with me. Okay, I will make payment to my travel agent. So when I make payment to my travel agent, I will be making converting my INR into dollars. So that particular transaction is capital account transaction या current account transaction. मतलब CAT है कि CUT है? CAT मतलब capital account, current is like CU. So that's CUT. Okay. I have invested in maybe like Apple ka stocks. I have got dividend income in my account. So the dividend income is CAT या CUT? That dividend income is CAT या CUT? So that's CUT. Current account है. Current account. Padmaja, you were wrong. I think someone else was also wrong. That's CUT. Achha, if I have bought investments in Apple, so I made payment to a broker in US, so वो transaction क्या होगा? What will be that transaction? So that will be capital. Simple logic we derive from here. See, anything which it alters your balance sheet, maybe on the liability side or maybe on the asset side, anything which alters your balance sheet maybe on the liability side or an asset side, that transaction is called as capital account transaction. Any transaction which alters your P&L, maybe on a debit side or maybe on a credit side, matlab either you are paying or you are receiving, that transaction is called as current account transaction. So if it alters your balance sheet, it is called as capital account transaction. If it alters your P&L, it is called as current account transactions. Clear? Don't mix your normal layman sir, current account मतलब अपना वो bank account. नहीं, सब अलग अलग है. FEMA is very different. We are studying a very different concepts right now. यहाँ पर कोई residential citizen is only either PRI or PROI. बस. Now, capital account transaction. It means a transaction which alters the assets or liabilities, including contingent liabilities. Outside India, property किधर है? Sorry, outside India. Opposite of a person resident in India. So you always remember ना पूरा opposite चलता है. Assets or liabilities including contingent liabilities outside India of person resident in India, or assets or liabilities in India of a person resident outside India. So assets or liabilities in India of a person resident outside India, and includes transaction referred in subsection 3 of section 6. वो बाद में देखेंगे क्या है, and includes transactions of section 6. So assets और liability किधर है? Outside India. किसका? PRI का. Opposite, assets or liabilities in India. किसका? PROI का. That's called capital account transaction. So what is current account transaction? It means a transaction other than a capital account transaction. Logical है? And such transaction includes 4 things. Number 1, payment due in connection with foreign trade हो गया, other account business services and short term banking and other credit facilities in ordinary course of business. Short term loan भी लिया है, you're making the payment, that's current account transaction. Payment due as interest on loans or net income from investment. देखो, interest on loan pay किया, income from investment आया, that is current account transaction. But loan का transaction और investment का transaction is a capital account transaction. उसका जो interest pay किया है, वो जो income आया है, वो is a current account transaction. Remittance for living expense of parents, spouse. Remittance मतलब बाहर भेजना. Remittance for the living expense of parents, spouse, children residing abroad. So I work in India, my family is outside India. ठीक है, वो लंदन रहते हैं. I'm sending money to them. That's a current account transactions. Expenses in connection with the foreign travel, education, medical care of parents, spouse and children. All those are current account transactions. So previously they used to ask a definition कि CAT क्या है, CUT क्या है. So CAT तो कुछ है नहीं, CUT exam में आ सकता है. It means a transaction other than capital account transaction. It includes 4 things. Number 1, payment made for foreign trade, other account business services, short-term banking, other credit facilities. Number 2, interest on loans or income from investment. Number 3, remittance for living expense of parents, spouse, children residing abroad. Number 4, expenses in connection with foreign travel हो गया, education हो गया, medical care of parents, spouse and children. ठीक है? Please mark point number 7 important. That's your current account transaction.
सेक्शन 3 कट, नहीं पढ़ना है. सेक्शन 4 रीड कर लो खाली. Except as provided in this act, no price shall acquire, hold, own, possess or transfer any foreign exchange, foreign security or immovable property situated outside India. वही है, except permitted with RBI permission लेना पड़ेगा, not to be studied. Then now comes your current account transaction. Before going on to the current account transaction, what we do is we are first doing capital account transaction. Come to section 6, capital account transaction. कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं, देखो अभी. अ पर्सन में सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम एन ऑथराइज पर्सन फॉर अ कैट. सो ऑथराइज पर्सन कौन है? वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर बैंक हो गए, थॉमस कुक हो गया, बहुत सारे एजेंट्स हुए. यू कैन गो देम, give your INRs and convert them into dollar, and then you can buy property outside India, you can make investments, you can pay off your loans outside India, anything which alters your balance sheet, it is basically a capital account transaction. अब section 6 में सब section 3 ये आ गया. RBI में by regulation either prohibit मतलब not allowed, restrict मतलब allowed but certain condition, regulate मतलब allowed है. So not allowed है but certain conditions, and generally allowed क्या है? Please take a pencil or pen in your hand, because क्या है, ध्यान रखना है. If one thing is in India, the person has to be outside India, or vice versa. If the person is in India, that particular thing has to be outside India. पूरा opposite है, full time pass है, खाली read करना है, not important for exam. Transfer or issue of any foreign security by a person resident in India. Security किधर है? Foreign. Person कौन है? In India. ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटी मतलब वो इंडियन सिक्योरिटी बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटी और अ फॉरेन सिक्योरिटी बाय अ ब्रांच ऑफिस एजेंसी इन इंडिया ऑफ अ प्रॉय. फिर बोरोइंग और lending इन फॉरेन एक्सचेंज, एनी बोरोइंग और lending इन रुपीज, डिपॉजिट बिटवीन प्राय एंड प्रॉय, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और होल्डिंग ऑफ करेंसी और करेंसी नोट्स, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी outside India. ठीक है. other than a lease not exceeding 5 years by PRAI. Underline other than lease not exceeding 5 years. So if this is a concept, other than lease not exceeding 5 years, ये allowed है या not allowed है? Transfer of immovable property outside India by a PRAI. देखो property outside, inside India. Other than a lease. Now what does this line mean, other than a lease? उसको opposite नीचे ये acquisition or transfer of immovable property in India by a PROI other than a lease not exceeding 5 years. What does this line mean? So अगर लीज पे कोई प्रॉपर्टी दे रहे हो फॉर मैक्सिमम 5 years, लीज पे प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, सी प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है तो पर्सन हैज टू बी आउटसाइड इंडिया. अच्छा, प्रॉपर्टी अगर आउटसाइड इंडिया है तो पर्सन हैज टू बी इन इंडिया. तो अगर लीज पे अभी कर रहे हो मैक्सिमम 5 years, नो आरबीआई का अप्रूवल रिक्वायर, वो अलाउड है. नो आरबीआई का रेस्ट्रिक्शन है, अलाउड है. लीज फॉर 5 years, मैक्सिमम 5 years. ठीक है. फिर गिविंग ऑफ अ गारंटी और अ श्योरिटी, मेक इट श्योरिटी, SURETY, in respect of any debt, obligation or liability incurred by a PROI and owed to a PROI or by a PROI. So अगर देखो कुछ भी प्रॉपर्टी अगर इंडिया है, पर्सन आउटसाइड इंडिया पकड़ने का, प्रॉपर्टी अगर आउटसाइड इंडिया, पर्सन इन इंडिया पकड़ने का. सो भैया ये सब चीजें अलाउड है, ये सब चीजें अलाउड है. फिर सो आरबीआई क्या कर सकता है? प्रोहिबिट कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है. जैसे अभी लीज वाली बात है, वो तो यूं ही अलाउ कर दिए. बाकी पीछे पूरा लिस्ट दे रखा है, गिवन क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है. फिर अब प्राय, अंडरलाइन प्राय, may hold, transfer, invest in foreign currency, foreign security or any immovable property outside India. एक सेकेंड, पर्सन कौन है? इंडिया वाला, मतलब अपन लोग. वी कैन होल्ड, ट्रांसफर, इन्वेस्ट फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया. होल्ड ऑन. नीचे 6(5) में अप्रॉय
may hold, transfer or invest in कौन सी करेंसी, इंडियन करेंसी, सिक्योरिटी और एनी इमोरल प्रॉपर्टी इन इंडिया. तुमको समझो ऑपोजिट चल रहा है, प्राय इंडिया वाला, प्रॉपर्टी फॉरेन वाला. उल्टा, पर्सन आउटसाइड इंडिया, प्रॉपर्टी इन इंडिया. कब? ध्यान सुनना. जनरली क्या बोलता है ये कि इफ आई वांट टू बाय प्रॉपर्टी इन यूएस, सो यू कैनॉट डू, यू नीड टू टेक आरबीआई का परमिशन, बिकॉज यहां से क्या होगा, आप फॉरेन एक्सचेंज फ्लो करवाओगे. सो इट्स अ बैड थिंग फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया में अगर फॉरेक्स आ रहा है इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट इफ इट इज गोइंग इट्स अ बैड थिंग. सो यू नीड टू टेक आरबीआई का अप्रूवल. बट आई एम अ प्राय बिकॉज आई एम इन इंडिया, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, स्टेइंग इन इंडिया, बहुत टाइम हो गया इंडिया में रहते रहते. बट द प्रॉपर्टी और द फॉरेन करेंसी और अ फॉरेन सिक्योरिटी आउटसाइड इंडिया, तो मैं पे करूंगा. वो बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कब? इफ सच सिक्योरिटी और करेंसी और अ प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड हेल्ड बाय सच पर्सन व्हेन ही वाज अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, जब मैं फॉरेन रहता था तब आया मुझे, और इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम अ प्रॉय, इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम अ प्रॉय. सी, या तो मैं वहां रहता था पहले, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं तो प्रॉय था, तब मैंने बाय किया था, तब मैंने एक्वायर किया था, मैं इंडिया आ गया, आई गॉट सेटल इन इंडिया, तो वो आ जाए इंडिया में, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो रेस्ट्रिक्शंस. या फिर माई दादाजी यूज्ड टू स्टे आउटसाइड इंडिया, उन्होंने लिख दिया अपनी वसीयत में, वसीयत मतलब विल में, कि बॉस ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दुबई, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ सिंगापुर विल बी हैंडेड ओवर टू अभिषेक बंसल हु इज इन इंडिया. सो इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम अ प्रॉय, ही वाज द प्रॉय, पर मैं तो प्राय हूं ना सर. एक सेकेंड. सो आरबीआई बोलता है कि भैया कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप बिंदास रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोवाइडेड क्या है, यू हैव एक्वायर्ड दोस प्रॉपर्टी व्हेन यू वर आउटसाइड इंडिया. ठीक है, डॉलर में खरीदा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. या फिर दादाजी से आपको इनहेरिट हो गई है ना, सो आपको पेमेंट तो करनी, दादाजी से आया ना सर, यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन, यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है. सो अब प्राइम में होल्ड, ट्रांसफर, इन्वेस्ट फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी, इमोरल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी किधर है, आउटसाइड इंडिया. प्रोवाइड, जब उन्होंने एक्वायर किया या तो वो फॉरेन में थे, या फिर इट इज इनहेरिटेड टू अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. इट ऑल्सो कवर्ड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. फॉरेन करेंसी अकाउंट्स ओपन एंड मेंटेन बाय प्रॉय, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनकम अर्न थ्रू एम्प्लॉयमेंट ऑफ बिजनेस और वोकेशन आउटसाइड इंडिया, टेकन अप और कमेंस व्हेन विद सच प्रॉय, तो जब आपने वहां पर सैलरी में पैसा कमाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड्स एनी इनकम अराइजिंग देयर फ्रॉम एंड कन्वर्जन और रिप्लेसमेंट और अक्रूवल, कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया था, इंटरेस्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड. A prime may freely utilize all their eligible assets abroad as well as income on such assets or sale proceeds thereof received after their tour India for making any payment. So property अगर वहीं से buy की है, for example my sister is in US now, it's been 5 years she is in US, she came to India, she got settled in India now, so whatever property she have bought when she was a proy, कोई 5 साल से वहाँ पर है ना, RBI you cannot restrict them, they can sell the property, they can continue to hold. आप कोई रूल नहीं लगा सकते, बिकॉज उन्होंने जो प्रॉपर्टी एक्वायर की वो लोग कौन थे, वो प्रॉय थे ना, वो प्रॉय थे. अब वो इंडिया आके सेटल हो गए, इफ दे वांट टू सेल दे कैन सेल, इफ दे डोंट वांट टू सेल आरबीआई यू कैन नॉट पुट एनी रेस्ट्रिक्शंस. क्लियर? उसका उल्टा नीचे है, देखो, प्रॉय may continue to hold, transfer, invest a property in India if such currency, security, property was acquired, held or owned by such person when he was resident in India. पूरा ऑपोजिट है, और इनहेरिटेड फ्रॉम अ पर्सन हु वाज रेसिडेंट इन इंडिया. इंडिविजुअल कौन है, प्रॉय, प्रॉपर्टी कहां पर है, इंडिया. या तो उन्होंने एक्वायर किया कब, जब वो रेसिडेंट थे इंडिया में, या फिर उनके दादाजी ने उनको दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अंडरस्टूड? सी, एक पढ़ लो, दूसरा अपना ऑपोजिट है. इफ यू डू वन, सेकेंड विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू यू. क्लियर है? सो आरबीआई कैनॉट रेस्ट्रिक्ट, यू कैनॉट रेगुलेट, यू कैनॉट प्रोहिबिट, ये लोग बिंदास रख सकते हैं. नाउ इसी को यूज करते हुए दिस पार्ट इज देयर, दिस पार्ट यू जस्ट हैव टू रीड, प्लीज राइट देयर आरटीपी. सी, अंडरस्टैंड ना, ये क्या है, परमिसिबल ट्रांजेक्शन बाय प्राय. सो सब प्रॉपर्टी किधर होना चाहिए सर, वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए. ऑपोजिट में परमिसिबल ट्रांजेक्शन बाय प्रॉय, सो पर्सन आउटसाइड इंडिया, तो प्रॉपर्टी इंडिया में होना चाहिए. फिर ये क्या है, ट्रांजेक्शन विद नो रेस्ट्रिक्शन, तो यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती. यू जस्ट हैव टू रीड दिस, खाली रीड कर लीजिए. 3 minutes टाइम, लेट मी नो वंस यू आर डन. रीड.
डन है? सो पहला इट वॉज ओनली जनरल पॉइंट के क्या क्या चीजें हैं, एंड देन दे हैव बाइफर्केटेड कि बॉस व्हाट आर द ट्रांजैक्शन व्हिच इज परमिसिबल बाय प्राय, व्हाट आर द ट्रांजैक्शन परमिसिबल मेड बाय प्रॉय. ठीक है, तो क्या करने का, इफ द पर्सन इज इन इंडिया, आई मीन पर्सन इज आउटसाइड इंडिया, तो प्रॉपर्टी सब इंडिया का होना चाहिए, एंड देन वाइस वर्सा. Now, transactions with no restriction. RBI cannot give any restriction for amortization of loan. Now, for example, I was staying in US like for past 10 years. I came back to India. I am a person resident outside India. Now, when I came to India, I got settled here. But I have taken a loan which was supposed to be paid in dollar. So I'll be paying dollar. Now, when I'm staying in India, I am paying dollar. So money is going outside India. So RBI will have a problem. But boss, that loan was taken when I was outside India na. So RBI you cannot put any restriction. Generally क्या होगा, RBI को problem होगा because the money is going out. But in this case RBI you cannot put any restriction. That's called amortization of loan. Number 2, for depreciation of direct investments in ordinary course of business. Now what do you mean by the word depreciation of direct investments in ordinary course of business? It means, now for example, if you know margin money, पता है FNO में होता है margin money. Do you know the concept of margin money? Others? Correct. Now I have done some FNO with in NYSE, New York Stock Exchange. So my broker had called me कि सर आपका FNO खड़ा है and आपका negative हो रहा है margin, you need to deposit some margin money. So now I have come to India. I am staying in India. I have taken some investment जहाँ पर मेरे को margin money देना है. So obviously I will pay money from my pocket. I'm in India. So RBI will have a problem. But to complete that margin money, I need to make payment. RBI, you cannot put any restrictions. So दो चीज पे नहीं कर सकता. Number 1, amortization of loan, that's repayment of loan. Number 2, depreciation of direct investment. You can write that example, depositing margin money. सर वो नहीं हो सकता, कोई restriction नहीं. RBI cannot put restrictions. ठीक है? एग्जाम में this answer is very 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 important. एग्जाम में this answer is very 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 important. Prohibited. Please write there, important. It says, no person shall undertake or sell or draw foreign exchange to or from an authorized person for any catch, provided that he may draw from an authorized person foreign exchange not exceeding $2.5 lakh, 2.5 lakhs, circle 2.5 lakh, will be doing with current, उसमें आएगा पूरा concept, or such amount as may be decided by RBI. Currently it is 2.5 lakhs. 2.5 lakhs डॉलर तक अलाउड है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता. PROI, person resident outside India. Just concentrate on this word, person resident outside India. Exam में they will give you a lot of confusion. अरे इंडियन सिटीजन है, अरे staying in India, कुछ भी दिया होगा, खाली देखना है PROI. Is sir prohibited. Prohibited मतलब sir not allowed from making investments in India. So PROI is not allowed to make investment in India in any form, in any company or in a partnership firm or a proprietor concern or any entity, whether incorporated in India or not, which is engaged or proposes to engage. जो ये 5 काम कर रहे हैं. Number 1, business of chit fund, निधि कंपनी, agricultural, AFP बोलते हैं उसको अपन, agriculture, farm house, plantation, AFP, where real estate business or transferable development rights, TDRs. PROI cannot make investment in these 5 things through any manner. ना कोई कंपनी में, ना पार्टनरशिप फर्म, ना प्रोप्राइटरी कंसर्न, या कोई एन एंटिटी, या खुद 5 जो बिजनेस करते हैं. 5 बिजनेस कौन से है सर? चिट फंड का बिजनेस कर रहे हैं, या कोई निधि कंपनी देवल इनकॉर्पोरेट पर कंपनीज एक्ट ना, वो चिट फंड कुड बी अ सोसाइटी ऑल्सो. थर्ड, AFP, एग्रीकल्चर, फार्म हाउस, प्लांटेशन. नंबर 4, रियल एस्टेट बिजनेस. नंबर 5, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स.
ये 5 जगह आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. 5 थिंग्स: चिट फंड, निधि, एएफपी, एग्रीकल्चर फार्मर्स प्लांटेशन, रियल एस्टेट बिजनेस एंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स. प्रॉय, यू कैन नॉट मेक इन्वेस्टमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस. ठीक है, प्लीज मार्क वॉट एवर वी हैव मार्क्ड. Proy is prohibited, not allowed, not allowed, not allowed, not allowed, not allowed, not allowed. ठीक है, hold on. Please write this point बाद में. It says real estate business shall not include development of townships, construction of residential commercial premises, construction of roads or bridges and REITs. REITs are governed by SEBI. REITs. एक सेकेंड, वो बोलता है कि सर you cannot make investment, so you cannot make investment in real estate business. ठीक है, Proy, you cannot make investment in real estate business. फिर वो बोलते हैं real estate business shall not include development of township, residential commercial premises, road, bridges and REITs. So my question is, ये 4 में allowed है कि not allowed है? Can a Proy make investment in these 4 things? Sir, in these 4 things it is allowed. Generally real estate business में allowed नहीं है, but in these 4 things it is allowed. So please write there on the terrace, real estate business shall not include, copy these 4 points. Copy these 4 points. डन. टाउनशिप्स, रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रीमाइसेस, रोड्स, ब्रिजेस हो गया, रीट्स हो गया, उसमें आप करो प्रॉय, कोई प्रॉब्लम नहीं. यू कैन मेक इन्वेस्टमेंट्स इन दिस 4 थिंग्स. कूल है. देवल पद्मजा डन. Okay. So guys, we are done with entire part of capital account transaction. Capital account transaction में exam point of view से only one answer is important: prohibited. No Proy shall make investment in this 5 business through any entity. निधि, चिट, AFP, real estate business and TDS. फिर real estate business में 4 things में it is allowed. सर townships हो गया, roads and bridges हो गया, residential commercial premises and REITs हो गया, उसमें आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. वेरी 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 इंपॉर्टेंट आंसर. Now we are doing, एक सेकेंड ना, कम टू एक्सपोर्ट का आंसर. एक्सपोर्ट का आंसर भी हो जाएगा. एक्सपोर्ट का आंसर, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेक्शन नंबर इज 7. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या कहता है? Certain points are read only, maybe I think 3 answers you need to remember. I'll let you know which one it is. पहला, every exporter of goods, see now understand, इंडिया से आप बाहर भेज रहे हो, that's called as export. इंडिया में आप मंगाओ, that's called as import. पहले खाली एक्सपोर्ट ही होता था, इंपोर्ट अभी ऐड हुआ है, इंपोर्ट आगे मिलेगा आपको. राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज एक्सपोर्ट. So either export of goods or services. So every exporter of goods shall furnish to RBI or to such authority a declaration containing true and correct material particulars including amount representing full export value.
आपको पता है आपने $50,000 का माल भेजा है, सो आई विल राइट $50,000. अच्छा, आई डो नॉट नो कि अमाउंट कितना आएगा, सर मे बी इट कुड बी 40,000 ऑल्सो, इट कुड बी $60,000 ऑल्सो, ठीक है कोई बात नहीं. इफ यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, यू प्लीज राइट देयर expected value कि कितना आपको आ सकता है. So if full export value or if full value of export good is not ascertainable at the time of export, the value which the exporter having regard to prevailing market condition is expected to receive on sale of goods in a market outside India. तो आप क्या लिख दीजिए, expected value लिख दीजिए. See, बहुत simple है. If you know the entire amount, please write the entire amount. If you do not know the entire amount, please write the expected value to receive in that declaration. Furnished to RBI such other information as may be required by RBI. So RBI may direct any exporter to comply with such requirement as it deem fit. Every exporter of service shall furnish to RBI or such authorities a declaration containing true and material particulars in relation to payment of such services. तो goods के लिए भी है, service के लिए भी है. मेरे को बताओ ये एग्जाम में आएगा क्या पॉइंट, बोलो. Will come in the exam? खाली रीड करना था. डिक्लेरेशन में क्या क्या जाएगा. इन केस एक्सपोर्ट्स टेकिंग प्लेस थ्रू कस्टम्स मैनुअल पोर्ट्स, एवरी एक्सपोर्टर शैल फर्निश अ डिक्लेरेशन. चेक करो आपको आता है क्या. अमाउंट पता है तो यू विल राइट फुल एक्सपोर्ट वैल्यू. इफ यू डू नॉट नो द अमाउंट यू विल राइट एक्सपेक्टेड एक्सपोर्ट वैल्यू. करेक्ट, सेम पॉइंट. तो वो अभी रूल्स पढ़ रहे अपन, रूल्स में आ गया. एग्जेम्पशंस. इन लोगों को डिक्लेरेशन नहीं देना है, इन लोगों को डिक्लेरेशन नहीं देना है. नॉट इंपॉर्टेंट. ये जो ई ए दिख रहा है ना, ई ए, ये ऐड हुआ है. दिस इज मतलब ये प्रीवियस टर्म का अमेंडमेंट है, ऐड हुआ है. कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है. इफ यू वांट टू मार्क 2-3 यू कैन मार्क. बाई चांस अगर एग्जाम में बहुत ही रेयर अगर आ गया कि भैया बताओ किन किन को डिक्लेरेशन नहीं देना था एक्सपोर्ट में. सो ट्रेड सैंपल ऑफ गुड्स एंड पब्लिसिटी मटेरियल सप्लाइड फ्री ऑफ पेमेंट, पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ ट्रैवलर्स whether accompanied or unaccompanied, transshipment cargo and goods supplied under the orders of CG. फिर नीचे से F, goods imported free of cost on re-export basis, goods which are permitted by Development Commission of SEZ, replacement good exported free of charge. तो इनके लिए डिक्लेरेशन देने का जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं पढ़ना है, नॉट टू बी स्टडीड. कूल. देन जनरली यू हैव टू गिव अ डिक्लेरेशन इन फॉर्म नंबर EDF. फॉर्म नंबर कौन से, EDF. डिक्लेरेशन इन फॉर्म सॉफ्टेक्स, वहां लिख दीजिए फॉर सॉफ्टवेयर. जनरल फॉर्म इज EDF, फॉर्म नंबर है, ठीक है. एंड फॉर सॉफ्टवेयर के लिए फॉर्म नंबर क्या है, सॉफ्टेक्स. अगर आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हो बाहर, सर आपका फॉर्म नंबर है सॉफ्टेक्स. इट हैज टू बी गिवन इन डुप्लीकेट. डुप्लीकेट डिक्लेरेशन फॉर्म शू बी रिटेन विद द ऑथराइज्ड डीलर्स. अब क्या क्या एविडेंस आएगा, एविडेंस, तो इसको मार्क कर लीजिए, इट कुड बी इंपॉर्टेंट. अलॉन्ग विद डिक्लेरेशन क्या क्या एविडेंस आएगा. सर बहुत सिंपल है. एक्सपोर्टर इज अ प्राई, ही इज अ प्राई एंड ही हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. नाउ द डेस्टिनेशन स्टेटेड ऑन द डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट या तो फुल एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब सॉफ्टवेयर. अच्छा, वैल्यू नहीं पता है तो कौन सा वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू. सो एक्सपोर्टर इज अ प्राई एंड इज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड डेस्टिनेशन जहाँ पर जो वहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर डिक्लेरेशन में लिखा है क्लियरली कि बॉस फुल एक्सपोर्ट वैल्यू कितना आने वाला है. अगर नहीं पता कौन सा वैल्यू लिखेंगे, बट एक्सपेक्टेड एक्सपोर्ट वैल्यू. बट माई क्वेश्चन इज वाई RBI इज इंटरेस्टेड ये सब चीज़ें कि अच्छा ठीक है यू आर एक्सपोर्टिंग तो बॉस पेमेंट आना चाहिए, पेमेंट टाइम पे आना चाहिए. वाई RBI इज इंटरेस्टेड, व्हाट्स द लॉजिक हियर. व्हाट्स द लॉजिक गाइस. कोई ना कोई तो रीजन होगा ना कि हाँ ये सब रूल्स बना रखा है एक्सपोर्ट के लिए. सर व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग गुड्स ना, तो सर फॉरेक्स इंडिया में आएगा ना सर. सो अगर फॉरेक्स में इंडिया में आएगा तो सर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया का बढ़ेगा ना सर. इसीलिए RBI इज इंटरेस्टेड इन यू. सर यू सेंड द गुड्स आउटसाइड इंडिया, यू गिव योर सर्विसेज, सर यू सेंड सॉफ्टवेयर आउटसाइड इंडिया, नो इशू, बट मेक श्योर यू रिसीव द पेमेंट ऑन टाइम. व्हाई, बिकॉज उसी के बेसिस पे इंडिया का फॉरेक्स डिसाइड होता है ना, इसीलिए. नेक्स्ट,
आ गया पीरियड, ठीक है। नाउ the period within which the export value of goods or software or services to be realized, ध्यान से सुनना भी, there will be 2 months, 9 months and 15 months, 9 months and 15 months. It says the amount representing full export value of goods or software or services shall be realized and repatriated to India, मतलब इंडिया में आ जाना चाहिए कितने दिन के अंदर, सर्कल करो, within 9 months, within 9 months. फिर आगे ऐड हुआ विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय आरबीआई एंड कंसल्ट विद सीजी फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट. अभी कोविड की वजह से रेस्ट्रिक्शंस आ गया, कुछ और डेज आ गया, बट जनरल इट इज 9 months, 9 months, 9 months, 9 months. Guys, generally it is 9 months. But where the goods are exported to a warehouse established outside India, directly party को नहीं गया, warehouse के through गया है. The amount representing the full export value of goods exported shall be paid to the authorized dealer as soon as realized, and in any case within 15 months or within such period as may be specified by RBI. सर डायरेक्ट किया है तो 9 months है, वेयर हाउस के थ्रू किया है तो इट इज 15 months, इट इज 15 months. डायरेक्ट किया है तो 9 months, वेयर हाउस के थ्रू किया है तो इट इज 15 months. मार्क 15 months इन योर बुक. अच्छा, further that the RBI is subject to the direction issued by RBI in this PF, an authorized dealer may for a sufficient and reasonable cost shown extend the said period. So extension मिल सकता है, कितना मिलेगा वो बोला नहीं है. जो नॉर्मली इज 9 months, वेयर हाउस के थ्रू किया है तो इट इज 15 months. RBI can also extend, RBI can also extend it. क्लियर. MCQ डिस्क्रिप्टिव 4 mark आंसर ऑल्सो, कुछ भी आ सकता है. नॉर्मल टाइम लिमिट इज 9 months और विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय RBI. अच्छा, अगर वेयर हाउस के थ्रू गया है तो 15 months है, वेयर हाउस के थ्रू गया है तो 15 months है, और मे बी सच अदर पीरियड एज RBI में स्पेसिफाई. एक्सटेंशन दोनों केस में मिल सकता है, बट वो टाइम टू टाइम मिलेगा. कौन बताएगा? वो RBI. एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, मार्केट इंपॉर्टेंट. देन submission of export documents, of export documents. The document pertaining to export shall be submitted to the authorized dealer within 21 days from the date of export or from the date of certification of software, अगर सॉफ्टवेयर है तो. सो सर्कल द वे 21 डेज, नॉर्मल टाइम लिमिट 21 डेज. किसको देना? अपने को, ऑथराइज डीलर को, क्योंकि पेमेंट सब वही रिसीव करेगा. आई कैन नॉट आस्क डायरेक्टली इन माय बैंक अकाउंट. इधर आई हैव टू कीप वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर और थॉमस कुक और HDFC बैंक और ICICI बैंक कि हाँ ठीक है पेमेंट आपको मंगानी है. फिर ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स. द ऑथराइज्ड डीलर में एक्सेप्ट for negotiation or collecting shipping documents including invoice, bill of exchange covering exports. Before accepting documents, he shall, where the value declared in declaration does not differ from the value shown in the documents being negotiated or sent for collection, or where the value declared in declaration is less than value shown in documents. तो क्या करेगा? वो सब कंसिडर करेगा सारे फैक्टर्स. टाइम पास है ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स. he shall consider कि वैल्यू एग्जैक्ट सेम है या मैच हो रही है या मैच नहीं हो रही है बिफोर ट्रांसफरिंग द डॉक्यूमेंट्स. Next, important. Sir, normal time limit is 9 months. You have to receive the payment. Warehouse के थ्रू किया तो सर it is 15 months. It is 15 months. But अब क्या हुआ है? Exporter has received an advance payment. Now advance payment मतलब सर goods गया नहीं ना अभी तक तो, ना services गई. So the exporter is under an obligation to ensure that the shipment of goods is made within 1 year from the date of receipt of advance payment. So सर जनरल टाइम लिमिट है कि आपको within 1 year में आपको आपका गुड्स भेजना है. आपने नहीं भेजा within 1 year, so आपको क्या लग जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट. अच्छा वो अभी तक आया नहीं, सॉरी within 1 year from the date of receipt of advance payment. अब कभी कभी क्या होता है कि when you have received advance payment you have to pay interest also. एडवांस आया ना, अब 1 साल तक आपको टाइम लिमिट है गुड्स भेजने के लिए. अब अज्यूम करो आपने को अफ्रीका में गुड्स भेजने का, तो अफ्रीका पार्ट ने तो आपको पेमेंट आज कर दिया है. सो ऑब्वियसली इट मे आस्क और इट मे नॉट आस्क. जनरली नहीं होता है, बट कोई केस में वो आप आप पे करोगे, आप रिसीव नहीं करोगे. आपको तो पेमेंट आ गया है, तो किसी का पैसा आपके पास ब्लॉक पड़ा है, यू विल मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एनी पेबल ऑन एडवांस पेमेंट शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ इंटरेस्ट
दैट्स लाइबल प्लस 100 बेसिस पॉइंट. एसएफए में क्या होगा अपने लाइबल प्लस 100 बेसिस पॉइंट बराबर. सो यू कैन पे द इंटरेस्ट मैक्सिमम अप टू लाइबल प्लस 100 बेसिस पॉइंट. अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कवरिंग शिपमेंट आर रूटेड थ्रू ऑथराइज्ड डीलर थ्रू whom एडवांस पेमेंट इज रिसीव्ड. So document should be routed through authorized dealer. तीन कंडीशन है. पहला, shipment of good is made within 1 year. Number 2, if any interest is payable, it will be maximum liable plus 100%, 100 basis points. ठीक है, मतलब 1% extra interest. Number 3, documents are routed through authorized dealer. Documents are routed through authorized dealer. ये तीन कंडीशन है. Now, अब एक क्वेश्चन है वो कर लेते हाथ के हाथ, तो इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस. आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 36 फॉर यू. देखो, लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम का. भारत कंप्यूटर हार्डवेयर लिमिटेड received an advance payment for export of high-tech hardware to a business concern Singapore by entering into an export agreement to supply the hardware within 6 months from the date of receipt of advance payment. तो समझ आना चाहिए कि सर एक्सपोर्ट कब आते हैं, एक्सपोर्ट कब आते हैं, एडवांस पेमेंट है, एडवांस पेमेंट. So last answer will come. The shipment of hardware was made after 9 months and the documents covering the shipment were routed through an authorized dealer through whom the advance payment was received. तो कंडीशन आ गया, थर्ड कंडीशन. Examine whether Bharat Hardware Limited has discharged its obligation in export FEMA. Is it possible to receive the advance payment where the export agreement, अच्छा, where the export agreement provides for shipment of goods within 15 months from the date of receipt of advance payment. मतलब agreement में ही लिखा है 15 months, नॉर्मल क्या बोला है 1 year है, पर वो तो एक्सपोर्ट अग्रीमेंट में लिखा है ना. ठीक है, तो वो पहला क्वेश्चन. ऑल्सो आइडेंटिफाई द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द एडवांस पेमेंट अंडर सेड एक्ट. पहला फर्स्ट पैरा के हिसाब से बोलो. इज द भारत कंप्यूटर हार्डवेयर लिमिटेड हैज कंप्लाइड द प्रोविजंस. बोलो. Have they complied the provision? फर्स्ट पैरा में एडवांस पेमेंट आया है, उनको 6 मंथ्स में देना था, उन्होंने 9 मंथ्स में दे दिया है. कौन प्रॉब्लम? हेलो हेलो, अल्फा टू चार्ली, कोई प्रॉब्लम गाइस? बोलो. सर 1 ईयर का टाइम लिमिट है ना, 1 ईयर में कभी भी दे दो. सो यू कैन पे इंटरेस्ट ऑल्सो, बट दैट कैन बी मैक्सिमम लाइबल प्लस 100 बेसिस पॉइंट. कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड द डॉक्यूमेंट शुड बी रूटेड थ्रू ऑथराइज्ड डीलर. तो ऑल द 3 कंडीशंस कंप्लीट, कोई इशू नहीं है. अच्छा, बट अगर आपके एक्सपोर्ट अग्रीमेंट में ही लिखा है कि 15 मंथ्स में दो, फेमा का रूल बोलते हैं 12 मंथ्स है, बट तुम्हारा बोथ द पार्टीज हैव अग्रीड, मतलब आप एक्सपोर्टर और जो मंगा रहे हो वो भी बोलते हैं कि ठीक है 15 महीने में दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फेमा का टाइम लिमिट इज अ हेल्प फॉर द आउटसाइडर्स कि ठीक है अगर आपने एडवांस पेमेंट इंडिया में भेजी है, वी विल मेक श्योर कि 12 मंथ्स में आपको पेमेंट आ जाए, आई मीन गुड्स आ जाए. पर आपने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है, आप बोलते नहीं नहीं 15 महीने में आराम से भेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक्सपोर्ट अग्रीमेंट में ही वो चीज लिखी हुई है. So what will be the maximum rate of interest payable? That's LIBOR plus 100 basis point. LIBOR plus 100 basis point. So देखो, so first you will write the theory जो अपन ने अभी last answer पढ़ा. Since Bharat has exported the hardware within 9 months of the date of receipt of advance payment, it has discharged its obligation within the provisions of FEMA Act. कोई problem नहीं है. Number 2, yes, it is possible to receive advance payment where the export agreement provides for shipment of goods extending beyond the period of 1 year. यहाँ पर क्वेश्चन में 15 months है from the date of receipt of advance payment. Normal time limit is 12 months. पर अगर आपने एक्सपोर्ट अग्रीमेंट में लिखा है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. थर्ड, द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल इज LIBOR plus 100 basis point. 100 basis point. अंडरस्टूड कैसा क्वेश्चन आता है एक्सपोर्ट पर? एनी डाउट ऑन एक्सपोर्ट गाइस?
कूल है, इजी। चलो ये वाला भी देख लो, 37 भी एक्सपोर्ट पर ही है। Sunita Garments Limited is engaged in the business of exporting leather garments. So you got this hint, export का आंसर है। The company is neither located in SEZ nor has any well special status of status holder, blah blah blah, कुछ भी नहीं है ऐसा। The company seeks your advice regarding the time limit within which the company is required to realize and import into India the foreign exchange arising out of export. आधे लोग को बोलता है कि अरे इम्पोर्ट का क्वेश्चन, अरे नहीं नहीं, एक्सपोर्ट किया है आपने गुड्स तो पैसा इंडिया में, तो दे हैव यूज्ड दैट वर्ड इंपोर्ट इनटू इंडिया, मतलब पैसा इंडिया में लेकर आओ, एंड टू बी पेड टू द ऑथराइज्ड डीलर, रेफर एज पर फेमा। बताइए बताइए बताइए, व्हाट इज द टाइम लिमिट? 4 मार्क क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन, यू हैव डन दिस पार्ट एक्सपोर्ट का। व्हाट इज द टाइम लिमिट? वी जस्ट डिड। हाउ मच इट इज? 9 months, एंड अगर वेयर हाउस के थ्रू किया तो 15 months। 9 months 15 months, सेम पॉइंट। Nine months. If you have done through warehouse, it is 15 months. फिर एक्सटेंशन अगर आरबीआई चाहे तो वो एक्सटेंशन दे सकता है। सेम आंसर, 4 मार्क आंसर। खाली 2 लाइन लिखना था, 9 months 15 months। डन है। सो ऑल दिस आर लेटेस्ट क्वेश्चन है एक्सपोर्ट के। एक लास्ट, एक 38 एकदम लेटेस्ट है। लास्ट 2 अटेम्प्ट से तो फेमा आया ही नहीं एग्जाम में, हो गया। सो फालतू में इतना पैनिक है फेमा को लेके, गाइस डरना नहीं है, फेमा बहुत ईजी है, लॉजिकल है, अपने ओन वर्ड्स में लिखो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग मार्क्स, ठीक है। सो वी रन विद कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, वी रन विद एक्सपोर्ट का पार्ट ऑल्सो, नाउ वी आर डूइंग करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। आ जाओ। एग्जाम में इफ यू सी द क्वेश्चन बुक, 37-38 क्वेश्चंस आर देयर, 12 to 13 क्वेश्चन यू विल फाइंड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं? सेक्शन 5 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000। सेक्शन 5 कौन से एक्ट का? सेक्शन 5 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, रीड विद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल 2000। आंसर ऐसे लिखना है। देयर आर 3 टेबल्स टू बी फॉलोड। Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3, Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3। Rule 3, 4, 5 है, yes। Rule 3, Rule 4, Rule 5। Then this is prohibited, not allowed, not allowed, not allowed. This is permitted by CG. This is permitted by RBI, permitted by RBI में भी एक होगा आपका इंडिविजुअल्स, उसके there is $2,50,000 एंड इधर है अदर देन इंडिविजुअल्स, एंड आई थिंक वहां पर यू विल सी 5 ट्रांजैक्शंस, 5। सो दिस इज द एंटायर टेबल।
अब एग्जाम में यही लिखना है खाली कि एज पर रूल 3 of schedule 1 of foreign exchange management current account rules 2000 the above transaction is prohibited. इतना ही लिखना एग्जाम में, 4 मार्क का आंसर है बस. As per rule 4 read with schedule 2 of foreign exchange management current account transaction rule 2000 the above transaction is permitted but with the prior approval of central government. As per rule 5 read with schedule 3 of foreign exchange management current account transaction rule 2000 the following transaction is permitted by RBI. यही लिखना है, बट आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रोहिबिटेड लिस्ट है, कौन सा सीजी है, कौन सा आरबीआई है. ठीक है, वी विल ड्रॉ लेटर क्योंकि और भी कुछ भरना है अपने को, बाद में देखते क्या है. सो पहले अपन पढ़ रहे प्रोहिबिटेड. सर प्रोहिबिटेड मतलब नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड. सर नॉट अलाउड. ऑलवेज रिमेंबर ऑल द बैड थिंग्स विल कम इन दिस. सर व्हाट आर द बैड थिंग्स? कैसे याद करोगे? सर स्केड्यूल 1 2 3 रूल 3 4 5. स्केड्यूल 1 2 3 रूल 3 4 5. एग्जाम में इसका ही लिखने का मार्क्स है, बाकी तो क्या अलाउड है, नॉट अलाउड है, परमिटेड बाय सीजी आरबीआई, वही चीज है. मेन ये रूल्स एंड स्केड्यूल नंबर. स्केड्यूल 1 2 3 रूल 3 4 5. स्केड्यूल 1 2 3 रूल 3 4 5. क्लियर? सर वॉट एवर रॉन्ग थिंग्स ना, मतलब इट विल कम इन प्रोहिबिटेड लिस्ट. मतलब सर मम्मी जिसका परमिशन नहीं देती है, मम्मी नॉट अलाउड. So the transaction for which withdrawal of foreign exchange is prohibited. Circle the word prohibited. Sir, मम्मी अलाउ नहीं करते ना. Remittance for lottery. I mean, general मतलब no मम्मी will go and say ना कि नहीं जाना, जा बेटा लॉटरी खेल जाके. गलत है ना. उसके लिए if you're using foreign exchange, not allowed. Remittance of income from racing or riding or any other hobby. Again we horse racing, riding सर वो भी गलत है सर. मम्मी अलाउ नहीं करेगी सर. Remittance for purchase of lottery tickets, band, Priska magazine, अपना प्लेबॉय, फुटबॉल पूल्स, स्वीपस्टिक, ये सब सट्टा है, मतलब पूरा पूरा जुआ आपके लिए. इसके लिए आप अगर फॉरेन एक्सचेंज यूज करो, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड. सी आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको पता होना चाहिए कौन सा क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया होगा. यू शुड नो कि वो सीजी का लिस्ट में आ रहा है कि आरबीआई के लिस्ट में आ रहा है कि प्रोहिबिटेड के लिस्ट में आ रहा है. यू शुड नो दिस पार्ट. सर आपको कुछ समझना नहीं है, खाली ये आपको वर्ड्स एक एक हिंट पकड़ लो. पेमेंट ऑफ कमीशन ऑफ एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर. इक्विटी इन्वेस्टमेंट देखा सर, प्रोहिबिटेड है. Remittance of any dividends to which dividend balancing is applicable, prohibited है. कुछ समझना नहीं है व्हाट इज डिविडेंड बैलेंसिंग, खाली बोलो कि डिविडेंड बैलेंसिंग है, प्रोहिबिटेड है. सर पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स, तो ये भी कमीशन ऑफ एक्सपोर्ट है, ये भी कमीशन ऑफ एक्सपोर्ट है. अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूल, ये दिखा आपको सर, प्रोहिबिटेड. प्रोहिबिटेड. रुपी स्टेट क्रेडिट रूल प्रोहिबिटेड, एक्सेप्ट कमीशन अप टू 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू फॉर एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड टबैको. कमीशन अप टू 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ टी एंड टबैको, वो अलाउड है. कमीशन अप टू 10% फॉर टी एंड टबैको, वो अलाउड है. पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन्स, हेलो आई एम सिंगल 10 miles अवे, उसके लिए पेमेंट करो, प्रोहिबिटेड. गंदा काम, मम्मी नॉट अलाउड, गंदा काम. फिर रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम, रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन द फंड्स हेल्ड इन नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट, सर प्रोहिबिटेड है. ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 है, 8. खाली आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रोहिबिटेड. क्वेश्चन में दिया होगा सर नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड. लॉटरी विनिंग्स, हॉर्स रेसिंग, राइडिंग, लॉटरी टिकट्स के लिए परचेज कर रहे हो, कुछ आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, सर नॉट अलाउड. एक्सपोर्ट एक और है स्टेट क्रेडिट, सर नॉट अलाउड. एक्सेप्ट 10% ऑफ टी एंड टबैको कमीशन, वो अलाउड हो जाएगा. डिविडेंड बैलेंसिंग नॉट अलाउड. कॉल बैक सर्विसेज सर नॉट अलाउड. सर नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी का कुछ इंटरेस्ट पेमेंट है, सर नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड. इसके लिए प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड है. सर सीजी की लिस्ट, सीजी की लिस्ट सर ये अलाउड है, बट यू नीड टू टेक फर्स्ट अप्रूवल ऑफ सीजी. क्या बोलता है? कल्चरल टूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन में होगा सोनू निगम, लता मंगेशकर. लता मंगेशकर एक यूएस में जाके कॉन्सर्ट करती है. अब वहां पर जो पता है वो बैकड्रॉप में डांसर्स होते हैं जो गाना गाते हैं, या फिर वो जो कॉयर का जो पार्ट होता है, ये जो बैकड्रॉप में डांसर्स डांस कर रहे होते हैं, उनको पेमेंट करेंगे फॉरेन करेंसी में. सो अगर लता मंगेशकर, वो तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, वो क्या कर रहे हैं, कल्चरल टूल्स विदेश में कर रहे हैं, उसके लिए अगर वो पेमेंट करे, सर अलाउड है, बट दे रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी. सर यू रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी, सर यू रिक्वायर प्रायर अप्रूवल सीजी, कल्चरल टूल्स. नंबर 2, एडवर्टाइजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया. फॉरेन प्रिंट मीडिया, फॉर एग्जाम्पल फोर्ब्स मैगजीन है, न्यू एज, वरना वो न्यू एज न्यूज़पेपर है, इंडिया एज नहीं, न्यू एज न्यूज़पेपर. एक सेकेंड ना,
एक बार ये कट करो, ये एक बार कट है. एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन मीडिया एक्सीडिंग $10,000, एक्सीडिंग $10,000 बाय एसजी और अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. क्या चाहिए अपने को? प्रायर सीजी का अप्रूवल. एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया एक्सीडिंग $10,000 बाय एसजी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और इट्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. तो सर क्या अपने को क्या चाहिए? सीजी का अप्रूवल. 7,000 तक का है, नॉट रिक्वायर. 8,000 नॉट रिक्वायर. 9,000 नॉट रिक्वायर. 10,000 नॉट रिक्वायर. 10,000 $1 रिक्वायर. क्लियर? बट if the payment you are giving to a foreign print media for the purpose, कौन से के लिए? सर प्रमोशन फॉर टूरिज्म, अतिथि देवो भव, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरनेशनल बिडिंग, इन तीन के लिए कर रहे हो, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट. डोंट गेट कंफ्यूज. यू आर मेकिंग पेमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया, मतलब न्यूज़पेपर मैगजीन के लिए आपको पेमेंट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कीजिए. कितने तक? $10,000 तक का, नो अप्रूवल रिक्वायर्ड. 10,000 के ऊपर है तो प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी इज रिक्वायर्ड. अच्छा, बट अगर पेमेंट करो काय के लिए? टूरिज्म के लिए पेमेंट की है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए की है, इंटरनेशनल बिडिंग के लिए की है, सर नो अप्रूवल रिक्वायर्ड. ठीक है, फर्स्ट अमाउंट 10,000 आपने पढ़ा है. अब सारी ट्रांसपोर्ट की बात है. सर रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टर्ड बाय पीएसयू, फ्रेट ट्रांसपोर्ट की बात है, सीजी का अप्रूवल. पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट, ऑर्गन ट्रांसपोर्ट, सीजी का अप्रूवल. मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, अगेन सीजी का. कुछ भी ट्रांसपोर्ट देगा सीजी का लिस्ट है. ठीक है. रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस बाय ऑफ ट्रांसपोंडर्स बाय टीवी चैनल्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स. ना फॉर एग्जांपल टाटा स्काई है ना, कॉमेडी सेंट्रल, एचबीओ, कार्टून नेटवर्क, पोगो, यू गेट टू सी इन इंडिया. सो टाटा स्काई ने आपको सर्विस दे रखा है, एयरटेल ने सर्विस दे रखा है, D2H वालों ने सर्विस दे रखा है, बट टाटा स्काई अभी तो पेमेंट कर रहा होगा ना, बिकॉज एचबीओ तो यूएस का चैनल है. करेक्ट. सो अगर वो जो पेमेंट कर रहे होते हैं सर अलाउड है, बट यू नीड टू टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी. फिर कंटेनर डिटेंशन चार्जेस, अगेन ट्रांसपोर्ट की बात है, एक्सीडिंग द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, सो ही रिक्वायर प्रायर सीजी का अप्रूवल. नाउ रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी और स्पॉन्सरशिप, ठीक है, ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रॉड बाय अ पर्सन. Remittance of a prize money or a sponsorship of a sports activity abroad by a person if the amount involves $1 lakh, exceeding $1 lakh. Now for example, Gokuldham Premier League हुआ, GPL, Gokuldham Premier League. Brett Lee came to India. Gokuldham Premier League में he won man of the series. We paid him 70,000 USD. So he will take that money to Australia. Sir, no problem. But if you paid him 2 lakh USD, Gokuldham Premier League, sir, he need to take the prior approval CG. Prior approval CG, जो भी उसकी मिनिस्ट्री को उसका वो अप्रूवल लेके जाएंगे, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स का, बराबर. But if that remittance is of the money which is given by ICC, BCCI, MCA, इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, BCCI अपना, BCCI का फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया ना, बोर्ड ऑफ क्रिकेट ऐसा कुछ है. MCA महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, अगर उन्होंने दिया है इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, कोई अप्रूवल नहीं चाहिए. बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ओके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ओके अरुण, थैंक यू. सो ICC, BCCI, MCA, या फिर अगर मैं बोलता हूँ फीफा वाले हैं, ओलंपिक्स वाले हैं, उन्होंने इंडिया में किया हुआ है, वो पैसा विदेश लेके जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, कितना भी अमाउंट हो. इनके अलावा किसी ने दिया तो द अमाउंट इज 1 लाख तक करो, कोई प्रॉब्लम. 1 लाख के ऊपर दिया तो अप्रूवल लेकर आने का. सो ओनली 2 अमाउंट्स आते हैं, $10,000 फॉरेन प्रिंट मीडिया का, $1 लाख रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी. ठीक है, क्लियर. लास्ट वन, रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ PNI क्लब. PNI इज बेसिकली प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब. अब वो यूएस वाटर्स में जब शिप जाता है ना, तो उनको एक PNI क्लब की मेंबरशिप लेनी पड़ती है. तो कोई भी जो शिपिंग कंपनी हो उनके लिए ये है. सो अपने को खाली पता होना चाहिए कि कौन सी लिस्ट में, इट इज CG के लिस्ट में. इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ सकते हैं, बता इसके में प्रोहिबिटेड है, CG है, RBI, यू शुड नो कौन से लिस्ट में क्या है. सो यहाँ पर 9. हाउ डू रिमेंबर सर? ट्रांसपोर्ट की बात है, मेजॉरिटी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की बात है, तो दिस इज 9 का लिस्ट. नेक्स्ट, अब ये सब वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट बताए कौन कौन से अप्रूवल लेने का. अपन एग्जाम में लिखेंगे प्रायर अप्रूवल CG, बिकॉज
आपको पूरा लिस्ट याद करने का जरूरत नहीं है, मॉडल में दे रखा, अगर याद होता तो ठीक है, नहीं तो बोलोगे प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी, जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री है उसका अप्रूवल है, तो वो लिस्ट है नीचे पूरी, नॉट टू बी रिमेंबर फॉर एग्जाम. नेक्स्ट शेड्यूल 3 रूल 5 आरबीआई का लिस्ट क्या बोलता है? फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल्स एंड अदर देन इंडिविजुअल्स. सो आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने अभी बोला आई एम गिविंग अ ब्लैंकेट अप्रूवल. कितने का? सर अगर आप इंडिविजुअल हो, हु यू आर एन इंडिविजुअल, सो आई एम गिविंग यू एन अप्रूवल ऑफ $250,000. A individual, you want to make payment in US, you want to give donation in US, you want to send some money in US, करो, मेरे पास मत आओ. कितने तक? $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर पर इंडिविजुअल. अब घर में अगर 4 लोग हैं, ठीक है, सो 250 पर फाइनेंशियल ईयर. आपने मार्च में ट्रांसफर किया, कोई प्रॉब्लम, 1 अप्रैल को फिर ट्रांसफर कर दो, बिकॉज वो पर फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है. बट इसमें कुछ वो लोग ने रूल्स लेकर है. व्हाट आर द रूल्स? सर $250,000 will be first used step 1 for cat. See, पहले क्या होता था, when we used to study ना, हमको क्या बोला जाता था कि कुछ भी कैट करने का है, तुमको कुछ भी कैट करना है. कैट मतलब सर लोन लेने का है, इन्वेस्टमेंट करने का है, इन्वेस्टमेंट सेल ऑफ करना है, कुछ भी कैट करने का है. सर फर्स्ट यू नीड टू टेक आरबीआई का अप्रूवल. कुछ भी एक भी अमाउंट का हुआ तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना. अब क्या होगा, वो ईज के लिए कि ठीक है $2.5 लाख तक कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाएगा इतना. $2.5 लाख तक आपको करने का है. 2.5 मतलब 2.5. सो आप कैट 2.5 लाख तक का कर सकते हो, कोई अप्रूवल लेने का नहीं है. पहले क्या होता था, एवरी ट्रांजेक्शन का अप्रूवल होता था. अब क्या बोला कि आई एम गिविंग यू ब्लैंकेट अप्रूवल ऑफ 250,000, यू टेक द अप्रूवल. आई मीन मेरे पास आओ मत, अप्रूवल मत लो, इट इज अलाउड. तो फर्स्ट यू विल यूज इट टुवर्ड्स कैट. अज्यूम करो आपने 1 लाख का कैट कर दिया, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई प्रॉपर्टी बाय कर लिया, अभी भी 150 बचा है. So whatever is the balance, step 2, you will use it for cut. Sir, 250,000 में से मैंने क्या किया, $1 लाख का मैंने कैट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. द बैलेंस इज 1,50,000. फिर अगस्त में मैंने क्या किया, 10,000 का डोनेशन दिया, डोनेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, बचा 140. सर मैंने 50,000 का कुछ ट्रैवल एजेंट में स्पेंड कर दिया, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो अभी बचा कितना सर, 90, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने 30,000 का सर फिर किसी को गिफ्ट दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, 60,000 अभी भी बचा हुआ है. अब मेरे को 70,000 का कुछ मेरे को पेमेंट करना है फॉरेन में. सो लॉ क्या बोलते हैं, फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल आपका 250 का स्लैब था, फिर 1 लाख आपने कैपिटल के लिए यूज कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपका 150 बचा, फिर आप करंट करते गए. नाउ आपके पास अभी 60,000 बचा हुआ है, बट यू वॉन्ट टू डू अ ट्रांजेक्शन ऑफ $70,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो. बट वॉट विल यू रिक्वायर, यू विल रिक्वायर आरबीआई का अप्रूवल. क्यों? क्योंकि आपका वो जो 250 था वो खत्म हो गया ना आपका. अच्छा, इफ यू कैन वेट, यू डू इट इन द नेक्स्ट ईयर. आप 31 मार्च तक सब टाइम पास कर लो. अब आपको 70 करने का एक काम करो ना, 1 अप्रैल को कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि 1 अप्रैल को फिर से रिचार्ज हो जाएगा 250 का. अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. फर्स्ट इट विल बी यूज्ड फॉर कैट, देन फॉर करंट एंड सो ऑन. आपकी लिमिट कम होती जाएगी. सर इज इट मैंडेटरी कि मैं कैट के लिए यूज करूं? नहीं, अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दिस अमाउंट इज फ्लैट 0. सो एंटायर 250 इज फॉर योर करंट, ना, करो ना बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर आपने 10,000 किया, 20,000 किया, 30,000 किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो बोल रहा है अगर आपको कैट करना है करो कैट, बट 250 तक का आपको अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है. सर व्हाट इफ एंटायर 250 मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ इफ यू वांट टू गो फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, आपको हर ट्रांजैक्शन का आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा, बिकॉज प्रोसेस क्या है, फर्स्ट स्टेप हैज टू बी फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. गाइस अंडरस्टूड द लॉजिक? इसको बोलते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम. ब्लैंकेट अप्रूवल दे रखा है. सी व्हेन वी विश टू स्टडी ना, हमारे पास पूरा टेबल होता है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए 10,000 अलाउड है, इसके लिए 5,000 अलाउड है, इसके लिए 25,000 अलाउड है. अब वो सब हटा दिया, सीधा ब्लैंकेट अप्रूवल 2.5 लाख का. सो वॉट एवर द क्वेश्चन आर इन योर क्वेश्चन बुक ना, या कोई भी ऑथर आप फॉलो कर रहे हो, सो हर एक में वो लिमिट दे रखी होगी वो लोग ने, मतलब क्वेश्चन में. पर आंसर में क्या बोलना आपने को, क्योंकि पहले लिमिट क्या था, $5,000 था, 10,000 था, 15,000 था, 25,000 था.
अब वो सब हटा दिया है, अब तो क्या बोले 250 तक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको वही बोलना है, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. हाँ, इफ इट एक्सीड्स $250, I mean $250,000, you require prior approval of RBI. बट ध्यान रखना आंसर्स में, क्वेश्चन में, क्योंकि अभी पुराने हिसाब से क्वेश्चन है ना, पर आंसर तो नया बन गया. आंसर क्या बोले 250 तक का करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऊपर क्या तो आरबीआई का अप्रूवल चाहिएगा. क्लियर? लेट्स रीड हियर. So it says individuals can avail forex for the following purpose within the limit of, circle this word, $250,000. For additional remittance क्या चाहिए अपने को? प्रायर आरबीआई का अप्रूवल. प्रायर आरबीआई का अप्रूवल क्या है सर? सर प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल, भूटान. ट्रैवल एजेंट के लिए दे रहे आप कुछ 250 तक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. गिफ्ट दिया, डोनेशन दिया. नाउ आई स्टार्टेड सेइंग इन यूएस, आपने मुझे गिफ्ट भेजा कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं, भेजो बिंदास भेजो, 2.5 लाख, कोई प्रॉब्लम नहीं. गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं. एमिग्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड, ट्रैवल फॉर बिजनेस, अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं सर. मेडिकल एक्सपेंसेस और चेकअप अब्रॉड और फॉर अकम्पनिंग एज अटेंडेंट टू अ पेशेंट. अब पद्मजा है, दौरे पड़ रहे, उनके इलाज के लिए मैं गया साथ में, 250 तक करो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, स्टडीज अब्रॉड, एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, सर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास करो 250,000 तक का. ठीक है. अब कहानी में ट्विस्ट है. आइटम नंबर्स इन DGH, DGH, D immigration, G मेडिकल ट्रीटमेंट, H स्टडीज अब्रॉड. ये तीन एक एक्सेप्शन है. ये क्या बोलते हैं? इट में अवेल एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द लिमिट्स प्रिस्क्राइब अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम. मतलब 2.5 लाख के ऊपर भी जा सकते हैं ये लोग विदाउट आरबीआई अप्रूवल. कौन कौन से? इमिग्रेशन, एक्सपेंस इन मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, स्टडीज अब्रॉड. सी लॉजिकल है ना. अभी इमिग्रेशन जैसे अफगानिस्तान में भी हुआ, सो इंडियंस को इंडिया में लेकर आए, अफगान जो हिंदू अफगान थे उनको इंडिया में लेकर आए. सो वो क्या बोलता है, या वाइस वर्सा, कोई भी आप कंट्री में जा रहे हो वहां पर, अब अज्यूम करो कोई फॉरेन नेशनल था जो इंडिया में रहता था, सऊदी वॉदी वालों को, उनको उनकी कंट्री में भेजा. सो ऑब्वियसली आप यहाँ से पैसा भेजोगे. जब आप यहाँ से पैसा भेजोगे, आरबीआई का लिमिट क्या बोलता है? $2.5 लाख तक आप भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट उस कंट्री ने बोल दिया कि आप $4 लाख तक ला सकते हो. आप जहाँ पहले रहते थे आप उस कंट्री से $4 लाख ला सकते हो. आरबीआई बोलते 2.5 के ऊपर का मेरा अप्रूवल ले. बट उस कंट्री ने जहाँ पर हम लोग एमिग्रेट हो रहे हैं, वहाँ पर जहाँ पर हम लोग एमिग्रेट हो रहे हैं, उन्होंने बोला है ना सर, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है सर? नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. नंबर 2, मेडिकल ट्रीटमेंट. अब पद्मजा का इलाज करने का, क्योंकि वो 24 घंटा मेकअप करती है. अब हॉस्पिटल ने बोला कि देखो इंडिया में तो इलाज हो नहीं सकता इसका, सर आप इनको यूएस लेके जाइए. अब यूएस से वहां से हॉस्पिटल का बिल आया $4 लाख का. अब मैं यहाँ से 2.5 भेजूंगा, 2.5 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 2.5 के ऊपर गया तो मुझे आरबीआई का अप्रूवल लगेगा. बट ये जो फिगर आया $4 लाख का, किसने भेजा? सर हॉस्पिटल ने भेजा है. सर आप बिंदास करो, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. स्टडीज अब्रॉड. नाउ आई वांटेड टू गो टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड स्टडी. उन्होंने बोला सर आपकी जो फीस है वो $10 लाख की है, $10 लाख की फीस है. अब इंडिया में क्या बोलते हैं? 2.5 लाख तक आपको अप्रूवल नहीं चाहिए, बराबर. 2.5 के ऊपर क्या तो अप्रूवल चाहिए. बट ये जो स्टडीज अब्रॉड का जो फिगर दिया, किसने दिया है? यूनिवर्सिटी ने दिया. तो अगर किसी यूनिवर्सिटी से अगर आता, जो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज कर रखी है गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, अगर वहां से कोई फिगर जैसे ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड यहाँ से आता है, तो सर नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. तीन चीज में अपने को इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट अपने को अप्रूवल नहीं चाहिए, प्रोवाइडेड कंट्री ऑफ इमिग्रेशन ने फिगर दिया है, हॉस्पिटल ने अप्रूवल दिया है, एंड यूनिवर्सिटी जहां पर आप जा रहे हो उसने अप्रूवल दे रखा है. इमिग्रेशन, एक्सपेंसेस, स्टडीज अब्रॉड. क्लियर है गाइस? एक क्वेश्चन बुक में क्वेश्चन होगा, उसका आंसर गलत दिया होगा, वहां पर उसने बोला है कि स्टडीज अब्रॉड के लिए अपने को अप्रूवल लेने का है, नहीं लेने का अपने को. ध्यान रखो, आईसीआई का सजेस्टेड है. एग्जाम में आप लिख देना, दोनों आंसर लिख कर आना कि स्टडीज अब्रॉड में अगर वो जो फिगर है, जो एस्टिमेशन है, जो यूनिवर्सिटी से आया हुआ है, अगर अपने उतना तक का किया, सर कोई प्रॉब्लम नहीं, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. इंस्टीट्यूट ने बोला अप्रूवल लेने का, वो मिस्टेक है इंस्टीट्यूट की, पर एग्जाम में आप दोनों आंसर लिख कर आना. क्लियर? 250. फिर फैसिलिटीज फॉर पर्संस अदर देन इंडिविजुअल्स, ये भी 4 मार्क का आ सकता है. इसमें कुछ 5 ट्रांजेक्शंस होंगे, ABCDES, 5 ट्रांजेक्शंस. क्या बोलता है देखो, इट सेज डोनेशन बाय कॉर्पोरेट. डोनेशन बाय कॉर्पोरेट काय के लिए?
फॉर क्रिएशन ऑफ चेयर्स इन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। जैसे अभी बोलते हैं रिलायंस ने स्कॉलरशिप दिया, सो रिलायंस वाले क्या करते हैं, ऑक्सफोर्ड में उन्होंने डोनेशन कर रखा है, तो व्हेन दे डोनेट, सो 1 or 2 सीट्स दे कीप इट फॉर रिलायंस। तो रिलायंस वाला इंडिया में क्या बोलता है, मैं स्कॉलरशिप दे रहा हूँ। अब रिलायंस ने स्कॉलरशिप नहीं दिया आपको, उन्होंने ऑलरेडी डोनेशन कर रखा था, सो आप वहां पर जाके पढ़ाई करोगे तो कितना डोनेशन अलाउड है। सो क्रिएशन ऑफ चेयर्स इन रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और टू फंड्स नॉट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट फंड और टू अ टेक्निकल इंस्टीट्यूट और अ बॉडी और एन एसोसिएशन इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ द डोनर कंपनी। सो नासा वासो को डोनेशन दे रहे हो, कोई आप रिसर्च कंपनी हो, मेडिकल वाली कंपनी हो, सो कितना अलाउड है सर, 1% ऑफ फॉरेक्स इन द लास्ट 3 years और $50 lakhs, $50 lakhs, $50 lakhs, whichever is less, whichever is less, whichever is less। इतने तक का करो, नो आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। इतने तक का करो सर, नो आरबीआई अप्रूवल रिक्वायर्ड। इसके ऊपर गया आरबीआई अप्रूवल रिक्वायर्ड, 4 मार्क आंसर, इतना सही। 1% ऑफ फॉरेक्स इन लास्ट 3 years और $50 lakhs, whichever is less। इतने तक नो आरबीआई अप्रूवल रिक्वायर्ड, इसके ऊपर क्या आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। नंबर 2, नाउ जैसे इंडिया में नो ब्रोकर है, फिर वी हैव प्रॉपर्टी की बहुत है, मैजिक ब्रिक्स हो गया। सो वैसे सेम क्या है यूएस की साइड से। अब मेरा प्रॉपर्टी इंडिया में था, पर किसी यूएस की साइट ने उसको बेचा। अब यूएस की साइट ने बेचा तो उसको मैं कमीशन दूंगा, बराबर। अब किसी यूएस की साइट ने, जैसे अज्यूम करो मैजिक ब्रिक्स यूएस में लोकेटेड है, मैजिक ब्रिक्स ने प्रॉपर्टी बेचा, सो मेरा एजेंट है वो, अब मैं उसको कमीशन दूंगा। वो बोलता है कमीशन पर ट्रांजैक्शन टू द एजेंट्स अब्रॉड। एजेंट्स कहां पर है, अब्रॉड, फॉर सेल ऑफ अ रेसिडेंशियल फ्लैट्स और कमर्शियल फ्लैट्स, नहीं है वो, प्लॉट्स होगा, नहीं फ्लैट्स होगा, फ्लैट्स, कमर्शियल फ्लैट्स, फ्लैट्स नहीं सॉरी प्लॉट्स होगा वो, प्लॉट्स इन इंडिया, प्रॉपर्टी कहां पर, इंडिया में। सो वो मैजिक ब्रिक वाला क्या है, वो पैसा मुझे इंडिया में देगा, बराबर, आए तो स्टे इन इंडिया ओनली, मेरे को उसको कमीशन देने का है। तो कितना बोलता है वो सर, $25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विचएवर इज हायर, विचएवर इज हायर। पहले में विचएवर इज लेस था, इतना तक का करो सर, नो आरबीआई अप्रूवल, इसके ऊपर के आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। बिग कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, ब्रिज बनाने का है, हाईवे बनाने का है, सीवेज वाटर प्लांट बनाने का है, कितना ये यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, कितना हो गया बेटा ये, $1 crore पर प्रोजेक्ट तक, $1 crore पर प्रोजेक्ट तक नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, $1 crore पर प्रोजेक्ट तक नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। मैंने वास्तु के लिए, मेरे घर के लिए मंगाया, अदर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, किसी यूएस वाले को बुलाया मैंने, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख, 10 lakhs पर प्रोजेक्ट। सो दिस इज $1 crore, दिस इज $10 lakh पर प्रोजेक्ट। इतना तक का करो, नो अप्रूवल रिक्वायर्ड, इसके ऊपर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। फिर रीइंबर्स कर रहे अपन क्या, और प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस ना, अलीबाबा ने हमारी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था, एबी लिमिटेड को, सो हम उसको रीइंबर्स करेंगे। सो अलीबाबा ने जब हमारी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट लाए होंगे, सो इट सेज रेमिटेंस ऑफ 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया और $1 lakh whichever is higher, so 5% of investment brought in India और $1 lakh whichever is higher, वहां तक का करो, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। उसके ऊपर का किया आरबीआई अप्रूवल रखेगा, उसके ऊपर आरबीआई अप्रूवल रखेगा। बॉस आपको ये सारे याद करने पड़ेगा क्योंकि ऑल 5 आर डिफरेंट। अभी तो बहुत ईजी हो गया, पहले तो हमें पूरा लिस्ट होता था, मतलब ये जो लिस्ट है ना, इसका A to I में हर एक में अलग लिमिट था, अब तो क्या ब्लैंकेट कर दिया लोग ने। खाली ये याद रखना आपको, अदर देन इंडिविजुअल के लिए क्या है, डोनेशन बाय कॉर्पोरेट, 1% ऑफ फॉरेक्स और $50 lakhs whichever is less, $50 lakhs whichever is less। इधर सर प्रॉपर्टी बेचा है तो एजेंट की तरह फॉरेन में, तो रेमिटेंस इंडिया में आया होगा, तो सर $25,000 और 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट रेमिटेंस whichever is more, whichever is higher। कंसल्टेंस ले, बड़ा कंसल्टेंस लिया, $1 crore पर प्रोजेक्ट, छोटा कंसल्टेंस घर के लिए, वास्तु के लिए $10 lakhs पर प्रोजेक्ट। सर प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस का रेमिटेंस कर रखा है, तो वो लोग इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे तो 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉड इन इंडिया और $1 lakh whichever is higher। सो ध्यान रखो, देखो इसमें भी 5% है, इसमें भी 5% है, इन इंडिया यहाँ पर $25,000 है कमीशन के लिए, यहाँ पर रेमिटेंस करो जब आप रीइंबर्समेंट करो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस का तो $1 lakh है, whichever is higher है। खाली डोनेशन में whichever is less है, हमेशा लॉजिक लगाओ, पैसा कम देना होता है, दान करो पर कम करो ना, मतलब सारा नहीं देना अपने को, तो whichever is less। 1% ऑफ फॉरेक्स इन लास्ट 3 years और $50,000 whichever is less, बाकी दोनों हायर है। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, यहां तक के लिए नो अप्रूवल, इसके ऊपर आरबीआई अप्रूवल चाहिएगा।
सर so देखो procedure for drawal of any foreign under this scale shall be same as applicable for remitting any amount under liberalized remittance scheme. Authorized dealer banks may allow remittance by resident individual up to 250 per financial year for any permitted current or capital account transaction or a combination of both. समझा आपको? So या तो current के लिए या तो capital के लिए या combo के लिए. तो पर पहले capital then current. If individual has already remitted any amount under LRS, that's liberalized remittance scheme, then the applicable limit for such an individual will be reduced from the present limit of 250. सो आपने 1 लाख का कैपिटल कर दिया है तो कम हो जाएगा, आपको खाली 150 बचेगा. फिर आपने डोनेशन दे दिया खाली 140 बचेगा. फिर आपने गिफ्ट दे दिया 30,000 का, सो उतना बैलेंस बचेगा तो वो कम होता जाएगा. फिर सो खाली प्रोसीजर होता टाइम पास. मीन आपका यही चार्ट था. अंडरस्टूड गाइस? कोई डाउट? नो डाउट्स? कूल है. चलो इन द नेक्स्ट क्लास वी कंटिन्यू द नेक्स्ट प्रोविजंस अगले क्लास में. ठीक है. सो वी आर डन विद मेजॉरिटी ऑफ फेमा, जो बेसिक हमेशा से आता ही था. अभी जो नया वाला जो पार्ट है वो अपन अगली क्लास में करेंगे. बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय. एम फॉर रैंक 70+.